Welcome you to all in SGI online class, and this is your computer class. Students, today we will continue chapter 8 and introduction to HTML. And in our previous class we already discussed some other useful tags in HTML, that is heading, horizontal ruler, paragraph, line break, bold, italic, underline. Next is the subscript. So today we are going to start the next tag, that is subscript. Actually this subscript tag is used to make the text smaller and lower than the main text on your web page. आपके वेब पेज पे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उससे स्मॉलर एंड लोअर देन द मेन टेक्स्ट लिखने के लिए हम इस टैग का यूज करते हैं. वी यूज द सबस्क्रिप्ट टैग एंड इट इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग, मीन्स इट ऑल्सो हैज अ ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज कंटेनर टैग. इसको कंटेनर टैग कहते हैं क्योंकि इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही टैग होते हैं. स्टूडेंट्स, हाउ वी राइट द सबस्क्रिप्ट टैग? This tag is written by like this. Sub. This is the opening tag and this is the closing tag. We can write this subscript tag like this: sub and slash shut. This is the opening. This is the closing tag. For example, जैसे कि हम लिखते हैं, if you are writing here the H2O, this is the formula of the water, and now you can see here that 2 is written, which is smaller than the main text. इस main text से smaller है and lower है. कैसा है? Lower है. So this tag, this 2 is, ये 2 क्या है? This is the subscript. This 2 is subscript. So ये जो हम 2 लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? इस subscript tag का यूज करके. This is the subscript tag. Next is the next tag is the superscript. The superscript tag is used to make the text smaller and higher than the main text. It is also a container tag. ये भी एक container tag है because it also has a opening and closing tag. And we can write this tag like this. We can write this tag this is the opening and this is the closing tag. हमने यहाँ सबस्क्रिप्ट में SUB सब यूज किया था, यहाँ सुपर में SUP superscript tag. We can write this tag like this: sub and slash sub. So this is the opening, this is the closing tag. For example, जैसे कि आप लिखते हो a की पावर 2. So this 2 is the smaller and higher than the main text. ये 2 क्या है? Smaller है and higher than the main text. इस main text से higher. So this 2 is the, 2 क्या है? This 2 is the superscript. This 2 is the superscript. हम इस 2 को राइट करने के लिए superscript tag का यूज करेंगे. So next is this is the super and subscript tag. Next is the center tag. Students, the center tag is used to place the text or image in the center of the web page. हमारे वेब पेज के सेंटर में अगर हमें इमेज या टेक्स्ट को राइट करना है तो हम इस टैग का यूज करेंगे. दिस इज द सेंटर टैग. And it is the container tag, means it also has a opening and closing tag. That's why it is a container tag. And how can we write this tag? Like this: center. This is the opening tag and slash center. This is the closing tag.
Suppose that this is the web page, and if you want to write your text and image in the center of the web page, then you can use this tag center tag. Actually students, सेंटर टैग में क्या होता है कि जो हमारा इमेज होती है या टेक्स्ट होता है सेंटर पार्ट में होता है, ठीक है। सो इन बोथ द साइड लेफ्ट एंड राइट दोनों ही साइड पे इक्वल मार्जिन लेफ्ट होता है सेंटर टैग में। दिस इज द सेंटर टैग। और जो भी टेक्स्ट आपको इसमें राइट करना है सेंटर टैग का यूज करें, देन राइट योर टेक्स्ट, देन क्लोज द सेंटर टैग। नेक्स्ट इज द फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग students, font tag is used to display the text in a particular font style. किसी भी particular font style में अगर हमें अपने text को display करना है तो we can use the font tag. And this font tag is also a container tag because it also has the opening and closing tag. दोनों ही tag होते हैं, तो ये container tag है. And how can we write this font tag? Like this. Font. Tag को हम किस तरह लिखेंगे? Font and closing tag is a slash font. This is the closing tag of the font tag. And in the font tag there are also 3 attributes. हम font tag में 3 attributes का भी यूज करते हैं। कौन कौन से attributes होते हैं वो? First is size. So size attribute. The size attribute means the font size attribute is used to specify the size of the text. आपके टेक्स्ट का साइज कैसा होगा इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम इस साइज एट्रीब्यूट का यूज करते हैं फॉन्ट टैग के अंदर, ठीक है। जैसे कि जो साइज होता है फॉन्ट का, द स्मॉलर साइज इज इज 1 एंड द लार्जर साइज इज 11। जो साइज होता है फॉन्ट का वो सबसे छोटा साइज होता है 1, लार्जर साइज होता है 11। दैट इज द साइज एट्रीब्यूट। एंड दिस इज ऑल्सो कंटेनर टैग। ये जो साइज एट्रीब्यूट है ये भी एक कंटेनर टैग है, इसमें भी ओपनिंग क्लोजिंग होती है। कैसे राइट करेंगे साइज एट्रीब्यूट का यूज कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द फॉन्ट टैग बिकॉज इट इज एट्रीब्यूट। साइज क्या है? एट्रीब्यूट है, तो हम इसको किस टैग के अंदर यूज करेंगे? तो फॉन्ट टैग हमने यूज किया, देन फॉन्ट टैग में साइज एट्रीब्यूट का यूज किया। और आपको साइज क्या लेना है? सपोज दैट यू यूज द साइज 10, देन नाउ इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। जो भी आपका फॉन्ट लिखा हुआ है फॉन्ट का साइज क्या है? 10, और इसके बाद आपका यहाँ पर फॉन्ट आ जाएगा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज द सेकेंड एट्रीब्यूट इज द कलर। You can use the color attribute in the font tag. Actually, the color attribute is used to change the color. Is used to set the color, change the color of the text. हम जिस भी कलर का टेक्स्ट चाहते हैं वो हम अपने कलर हम अपने टेक्स्ट में ला सकते हैं by using this attribute in the font tag. And for using this color tag, we can write the name of the color. हमें उस कलर का नेम राइट करना होगा। It is also container tag, means it also has the opening and closing tag. And how can we use this tag? First of all, font tag के अंदर हम इस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। तो font के अंदर मैंने दिया यहाँ पर कलर, देन कलर का नेम। जब हम कलर यहाँ पर जो कलर की वैल्यू होगी वो क्या होगा? उस कलर का नेम होगा। सो here we use the green color. Now close the font tag. इस तरह से हम कलर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। नाउ थर्ड इज फेस। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज द फेस। द फॉन्ट फेस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द टाइप फेस एंड द नेम ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, नेम ऑफ द फॉन्ट। हम अपने जो फॉन्ट है उसका नेम को स्पेसिफाई करते हैं, उसके नेम को या जो फॉन्ट है फॉन्ट टाइप को हम सेट करते हैं, उसके लिए हम फेस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने कभी भी जब भी आपने वर्ड पैड यूज़ किया तो उसमें क्या होता है? एक तो आपको अपने टेक्स्ट का साइज क्लियर करना होता है, देन फॉन्ट का स्टाइल मीन्स वो किस स्टाइल में राइट है, तो वो आपको यहाँ पर बताना होता है। फेस एट्रीब्यूट का यूज़ करके वी कैन सेट द टाइप फेस और द नेम ऑफ द फेस। सो हियर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फेस इन द HTML। इसका हम यूज कैसे करेंगे? इट इज ऑल्सो
container tag because it also has a opening and closing tag. देन पेज एट्रीब्यूट में यूज करेंगे, उस पेज टाइप का नेम राइट करना होगा हमें यहाँ पर। सपोज दैट हमने जो टाइप लिया है वो कैसा है, एरियल है। देन वी क्लोज द फॉन्ट टैग। Actually students, in HTML some commonly used font face is the Arial, Times New Roman, Calibri. These are the commonly used page attributes in the HTML. ये बहुत सारे नेम होते हैं उनके, वो आपको यूज करने पड़ेंगे। हमें यहाँ पर पेज टाइप का नेम राइट करना होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द व्यूइंग एन HTML कोड इन अ ब्राउजर। Students, I already told you the how can you view your HTML documents in a web browser. आप अपने HTML documents को वेब ब्राउजर में कैसे देख सकते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। बट नाउ हेयर टू व्यू एन HTML कोड इन ए वेब ब्राउजर मीन्स आपने जो कोडिंग की है, जो अभी मैं आपको ये टैग यूज़ करना बता रही थी, दैट इज HTML हेड, बॉडी के अंदर फॉन्ट टैग, सेंटर, बोल्ड टैग, जितने भी आपने टैग यूज़ किए वो सब आपकी क्या कहलाती है, कोडिंग कहलाती है, HTML कोडिंग। So when you seeing your HTML document you can see only वेब पेज में आपको वो टेक्स्ट शो होता है, कभी भी कोडिंग शो नहीं होती है। ओके, नाउ बट यू कैन सी द कोडिंग ऑल्सो। जो आपने HTML की कोडिंग की हुई है वो भी आप अपने देख सकते हो वेब पेज पर। कैसे, टू व्यू एन HTML कोड इन अ ब्राउजर। हम यहाँ पर HTML कोड को देखने के लिए ब्राउजर में कैसे देख सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। So students, first of all open the Internet Explorer and navigate, go to the web page of your choice. सबसे पहले आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे और अपनी चॉइस की किसी भी वेब पेज पर नेविगेट कर लेंगे। Navigate the web page of your choice. जो भी आपको वेब पेज ओपन करना है वो आप वेब पेज यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर पर आप ओपन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे, फाइल चूज करेंगे, फाइल का पाथ देंगे, उस फाइल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपका वो HTML डॉक्यूमेंट्स वेब पेज पर ओपन हो जाएगा, वेब ब्राउजर पर ओपन हो जाएगा। सो मैंने यही आपको बताया, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे और अपनी जो भी आपको वेब पेज ओपन करना है उसको नेविगेट करके उसको ओपन कर लेंगे। नाउ आफ्टर ओपनिंग योर वेब पेज प्रेस ऑन ऑल्ट की। ऑल्ट की पर प्रेस करेंगे, जैसे आप ऑल्ट की पर प्रेस करेंगे एक फाइल मेन्यू अपीयर हो जाएगा। ठीक है, एक मेन्यू बार अपीयर होगा, उस मेन्यू बार में कई सारे ऑप्शन होंगे, फाइल, व्यू, इस तरह से कई सारे ऑप्शन मेन्यू बार में होंगे। देन यू चूज द व्यू मेन्यू। आप इसके बाद क्या करेंगे, क्लिक ऑन व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन व्यू मेन्यू। इसके बाद आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे, ऑल्ट की में से आपका ये पूरा मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। मेन्यू बार में आप व्यू मेन्यू पर क्लिक करेंगे, देन सेलेक्ट द सोर्स ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे आप व्यू मेन्यू पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनकर आ जाएगी। इसमें कई सारे ऑप्शंस होंगे, तो आपको इसमें से कई सारे जो ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है टूल बार, एक्सप्लोरर बार, यहाँ पर लास्ट में होगा सोर्स, तो आपको इस सोर्स को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर व्यू मेन्यू पर क्लिक करेंगे, बहुत सारे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आपको यहाँ पर चूज करना है। यू चूज द सोर्स ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू बार। सो क्लिक ऑन द मेन्यू बार, देन चूज द सोर्स ऑप्शन। सोर्स ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके जो HTML कोडिंग की जो फाइल है वो डिस्प्ले हो जाएगी। सो दिस इज द प्रोसेस टू व्यू एन HTML code in a browser. Okay students, with this topic your chapter 8 is also finished. In our next class we will discuss the exercise and question answer of this chapter. Thank you students, have a nice day.